एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀਬੀ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲੋਨੀ ਕਨਾਲ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਫਰਵਰੀ 1936 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੀਰਬੰਧੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਲਵਾਈ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਵਜੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ MSc ਅਤੇ PhD ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੈਮੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਰੰਮੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
डॉक्टर दलबीर सिंह देव पातशाह जीओ सूं परिवार ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਛੋੜਾ ਦੇ ਕਰ ਇਸ ਬਾਤ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਜਾਣਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੰਗੀ ਦੇਵ ਬੇਟੀ ਅਮਨਾ ਦੇਵ ਸੂ ਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਹਿ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਪਾएंगे ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਦਾਸ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਹਮਸਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ समझी बाणी पढ़ते हैं सेवा करते हैं कीर्तन करते हैं दुनिया में मानव जीवा बख्शो बड़ी सुनी कुर्बानी के भाव समूह संतान के हृदय दिल स्वामी श्री बख्शे कृपा करनी सच्चे पातशाह जीओ मेर करनी डॉक्टर दलबीर सिंह को सुसार सूचक महाराज रे दुनिया को नाचका की कृपा करनी अब की बार बख्श बंदे को बहुत नाम पहुंच तेरा देखे कते न सुनिए के भूलन हार बख्शनहार बख्शे नानक पार का अनुसार पातशाह जी अपने चरणों का निवास बख्शना जन्म मरण और जन्म 84 का चुना तो करना पीछे समूह परिवार में पढ़ाने की समर्था बख्शनी नाम दान पंथ की चढ़ती का कोशिश करनी अंग संसारी होना सकते हुए प्रयास करना देशा देशा बच्चा के सकते हुए प्रयास ज्ञान संसारी होना सकते कृपा करनी परिवार में आप जी के हजूर प्रणाम प्रशांत देगा हाथ दिखने दार प्रवान हो प्रवान में प्रसाद बताऊं की आज्ञा बख्शो जो शके सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु महाराज पावन हुक्मनामा बख्शिश करके कृतार्थ करना महाराज हुक्म के चलन की समृद्धा बख्शिश करना सर्वत संकट में हारियां बेटा सेवा प्रवान करनी सही प्यारे मेरे जिना तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की जय श्री संत महला संसार गर्भ रटिया करते पाप अनेक माया रंग रटिया आधान संसार गर्भ रटिया करते पाप अनेक माया लोभ मोह अभिमान मुझे मरण जीत न आवरे पुत्र मित्र व्यवहार बनता करत विहावे कुछ दिवस आए लिखे पाए
करम ना मिटै नानक, हर नाम धन नहीं खटिया। उत्तम करे अनेक, हर नाम न गावही। पर में जोर असंख, मर जमै खावही। पशु पंखी सैल तरवर, गणत कछु न आवे। बीज बोरस भोग भोगै, किया अपना पावै। रतन जलम हरंत जुए, प्रभु अपना पावही। बिनवंत नानक परमै परमाए, खिल एक निगम ना पावई। जो बन गया प्रतीत, जार मल बैठिया। कर कंपे सिर डोल, नैन ना डिठिया। नैन नैन ईसै, बिन भजन ईसै। छोड़ माया चालिया, कहया न माने। सिर खाक छमे, जिन संग मन तन जालिया। श्री राम रंग अपार पूरन, नह निमुख मन में उठिया। बिनवंत नानक कोट काकर, बिन सवार ना छूटिया। चरण कमल शरणाए, नानक आया। दुतर भय संसार, प्रभु आप तराया। मिल साध संगे भजे श्रीधर, कार्य अंग प्रभु जी पाया। हर मान लिए नाम दिए, अवर कछ ना विचारिया। गुण निधान अपार ठाकुर, मन मणिदा पाया। बिनवंत नानक सदा तृप्ते, हर नाम भोजन खाया। गुण निधान अपार ठाकुर, मन मणिदा पाया। बिनवंत नानक सदा तृप्ते, हर नाम भोजन खाया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम दे पावन चरणां विच विराजमान सत्कारयोग गुरु साहिब संगत जीओ। सतगुरु की बाणी का प्रमाण है, वर्ण मिटाए मंडल में आए। संसार का प्राणी अपना वर्ण पहला रखा के फिर संसार में जन्म लेता है। आपको जो शब्द साहा लिखा होता है, जिमें जिमें समाज का बढ़िया जाता है, जननी जान पता होता है। इतना न जाने के दिन करता है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਵਾਦਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛਿਨ ਛਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਟੁੱਟੇ ਕੱਟ ਜਾਣ ਪਾਣੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਸ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦਿਵਸ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨਤ ਫਰਮਾਨ ਇਸ ਪਰਤਾਏ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। सो ये जो मौत है, हमारे लिए ये निश्चित है, ये आनंदी मौत है। और जो जीवात्मा है वो अपने कर्मा के मुताबिक अपने संरक्षण कर देती है। करनी आपको अपनी ये निर्णय के अंदर। सो गुरु चरणों जो प्राणी इस संसार में अगले जाता है, उसके मिलकर दास की जाती है। सो आप सुनो सरकारी गुरु चरणों डॉक्टर दलबीर सिंह देव, जिन्होंने
परिवार की बेनती मानते हुए अरदास में शामिल होना किया धर्मपत्नी जी जिन्होंने बेटा सैनी दे बेटी अपना सुन परिवार जिन्होंने गुरु का आसरा लिया सो गुरु साहब कृपा करें जो डॉक्टर बलबीर सिंह करीब 85 साल की उम्र इस संसार में छोड़ के इस मानी संसार में रखे गए सो गुरु साहब कृपा करें उन्होंने शहीद अपने चरणों का संविधान बख्शिश कर सुन परिवार को संगत हमारे फ्रेंड सफलता दें सो 2 दिन बुला रहे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करनी है उसको पहला मैं बेनती करना कि डॉक्टर बलबीर सिंह के बेटा सैनी देव को रखा देव के गुरु का उनका स्थान नहीं है वो प्राप्त करने के लिए सैनी देव की बेनती है कि गुरु का उनका स्थान प्राप्त कर लें उसके बाद बेनती करना कि डॉक्टर CN सिंह को सरकार को श्रद्धांजलि होंगे उन्हें बड़ा सरदार सिंह एक बेटा बच्चा सो बेनती है सभी मेरे चाचा जी दलबीर सिंह देव उन्होंने आने को पूछना सी कि भी तू ये टिकारा क्यों लाया मैं कहना सी तेन इसका मतलब पता है ये कदों पहली बार लाया गया कितने लाया गया कदों कदों लाया जाता है ये तो सब कुछ तेन पता है फिर तो ठीक है जे तू रीस लाई है कि सारे लाते हैं तो काम मैं भी लाता इमीडिएट किया फिर तो सिख नहीं कहते कि सिख वो है जो सिख को प्यार है जो नकल तो जो आप किसी की नकल करते हैं इमीडिएट करते हैं तो असी सिख ही रहे आप सिख नहीं सकते ये सी शख्सियत मेरे चाचा जी डॉक्टर देव हर बहुत सारे लाइफ के आसपैक्ट्स है जिन्होंने उन्होंने टच किया मेरे लोगों के उन्होंने एक बहुत बड़ा सी एजुकेशन सिक्ख्या उन्होंने कहना सी कि सिक्ख्या प्राइमरी मिडल हाई लैवल से बहुत जरूरी है मैं पहला इंसान देखा जी अपनी जेब चों टीचर सरकारी टीचर की तनख्वाह लेते किसी को असं दसते जैनपुर मलकपुर अगे चले जाइए अपना तक जिन्हें सरकारी स्कूल से पूरा पता रखते सी कि किन्ने किन्ने बच्चे आ रहे हैं कितना टीचर है की पढ़ा रहे हैं पेंशन लग गई वो भी वो तनख्वाह देते से जाके पेंशन बढ़ गई टीचर की तनख्वाह बढ़ा देते दूसरा केंद्र एक होर जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिता वो सी गरीब बंदे के इलाज गुरु गोबिंद सिंह ट्रस्ट बनया पढ़ाया गया CMC के नाल टाई अप किया और उन्होंने कहना सी कि जोड़ा मजदूर है जोड़ा दिहाड़ी करने वाला होता है वो अपने इलाज में पैसे नहीं 5-6 बंदों का परिवार पालता है कला या तो इलाज मिलता नहीं जे मिलता है तो करते सुखा कर पिछले 25-30 सालों तो लगता हज़ारों ਇਹੋ ਜਿਹੇ वर्ग के बंदों का उन्होंने इलाज कराया मैनू स्पैशली कहा कि भी तू जोड़ा लेबर क्लास का बंदा है डेली वर्कर है वो तो बड़ी प्रिस्क्रिप्शन पैसे नहीं है फ्री ऑपरेशन कर तीसरा उन्होंने एक होर बड़ा बड़ा पहलू सी पखंड के खिलाफ बहुत बड़ा वो कहते कि बाबा नानक ने हरिद्वार को मौके तक सानू बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की पर असं कुछ नहीं सीखा जिन्ना पखंड असी कर रहे हैं कहते बार बार हर थां से दिखाते देख की पखंड हो ऊच नीच जी कास्ट सिस्टम है ये जोड़े किसी बंदे ने अपनी लाइफ के टोटली अपनाया वो डॉक्टर दे स्पैशली पिंडा के जाके कहते सब तो लोअर कास्ट सब तो गरीब बंदा वो घर जाके चाह पी टोटली उन्होंने अपने अंदरों ये सिस्टम को खत्म कर दिया कहता लोग घर च भांडे कहते वखरे रखे होंगे काम वाले दे उपरों पाठ करते हैं कहते इन्होंने पूरी समझ नहीं लगी
बिल्कुल बराबर का दर्जा हर बंदे का उन्होंने मन के होना। तो किनिया यहो चीज़ा ने जो उन्होंने सिखाइया, और मैं चाहना कि मैं जो 10% भी जो उन्होंने सिखाया है वो अपनी लाइफ पा करके मैं बहुत किस्मत वाला होगा। उन्होंने मैंने समय बिताने का मौका मिला, उन्होंने तो इन्ना कुछ सीखने का मौका मिला, यही एक बहुत किस्मत की गल सी। वाहिगुरू जी का खालसा। महान शहीद डॉक्टर दलबीर सिंह देव जी की अंतिम अरदास में शामिल होने सफल होए हैं। मेरे तो पहला ये बुलाए ने डॉक्टर साहब के ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ मेरे पिंड तक आना, उन्होंने इतों जैनपुर तो शुरू होना था, उन्होंने मेरे ख्याल भूरी तक काफ़ी पिंड स्कूलों वाले होते होते और अज उन्होंने देखा फार्मर इकट्ठे होकर अपनी फील्ड तैयार कर ली। उन्होंने भट्ठे में एक सोसाइटी बनवाई ताकि फार्मर अपनी फील्ड भट्ठी बनवा सकन। तो साडा फील्ड डेयरी का, असीं डेयरी खेतर के साडे नाल डॉक्टर साहब जी मेरे तो पहले जिवें नारायण साहब ने कितने खेतर दसे, ये तो भी होर बहुत खेतर जिन्होंने काम किया। और चाहे कोई इलैक्शन भी आने उत्थे भी देखना भी कितने शराब का मंडल लोग कितने प्रचार करना चाहिए, वो हर फील्ड काम करते हैं। साडे खेतर दे विच उन्होंने बड़ा वधिया काम किया कि साडे वो सानू प्रेरणा दिंदे सी। जो साडे विच बैठ जाते, साडी वो कार्यकारी कमेटी के मैंबर सीगे, उन्होंने डीन एनिमल साइंस होंदे जो फार्मर को सिखाया या फार्मर को कहा भी इसे तो करो। मैनूं ये लगता भी बहुत घट लोग ने जिहड़े अपनी नौकरी करके जॉब करके लोगों को समझाते, उस बाद जो ही नौकरी हट जाती है वो उत्थे ही अपना काम छड्ड दिंदे ने। ते डॉक्टर दलबीर सिंह देव ये इंसान सी, अपने ही जो रिटायरमेंट तो बाद उन्होंने डेयरी फार्म किया। मैं डॉक्टर साहब तुसीं हुण आराम करना टाइम, तुसीं हुण इहदा डेयरी फार्म करना एक बहुत औखी जॉब आ जिहदे विच बड़ा ध्यान देना पैंदा कि तुसीं क्यों कीता। वो कहते दलबीर मैं जे लोगों को समझाया तो देखना चाहना कि असीं लोगों जो कहते सी सही है भी ये इन्ना प्रॉफिट हैगा या लोगों ने जो कहते रहे ठीक है गल। उन्होंने बड़े वधिया तरीके डेयरी फार्म किया, बड़े वधिया डेयरी फार्मर सी। और दूसरा उन्होंने साडी एसोसीएशन के विच जिन्ना काम किया, जिन्ने मैं कहना भी जिस इस उम्र के विच एक आप कहते हैं जो बंदे ने सारी को जॉब की उस तरीके की जो इतने जो डेयरी खेतर है हर वे बदलाव ने उन्होंने पिछली गल्लां छड्ड के नवे असीं कहने गांव दिंदे सीगे कि आने वाले टाइम जिवें असीं साडी एसोसीएशन काम करदी है उस मूरे हो सोचते सी आपां ने इवें करना चाहिए, इन्ना टाइप करना चाहिए, जिथे असीं जाना प्रेजेंटेशन देनी आउट ऑफ स्टेट मीडिया नहीं जाना। डॉक्टर साहब इस उम्र के साडे नाल जांदे सी, मतलब बीमार होने तक डॉक्टर साहब बिल्कुल सरगर्म रहे हैं, पॉजिटिव रहे हैं और हमेशा जिथे गल कहनी है अगर किसी भी मीटिंग के विच या कोई किसी हो किसी को मिलते हैं तो बेबाक होकर अपनी गल कहते सी ते अगले सामने वाले की जिंदगी को शख्सियत सुननी पैंदी, चाहे कोई मंत्री है चाहे कोई भी कितना बड़ा बंदा भी है वो उनकी सुनते सी। इस करके डॉक्टर साहब का जान का जिहड़ा असीं कहने भी एडा बड़ा घाटा वा साडे लई ते परिवार की तो बहुत बड़ा घाटा ते साडे लई भी उन्हीं परिवारां नूं बहुत बड़ा घाटा वा जिहड़ा पूरा नहीं हो सकता। साडे हमेशा असीं कहने भी यादां च रहणगे ते उहदी यादां ताज़ा करने लई अपनी एसोसीएशन वालों एक अवार्ड भी शुरू करांगे जिहड़ा हर साल दित्ता जाया करूगा ते असीं कोशिश करांगे डॉक्टर साहब दी याद विच होर की कर सकदे असीं क्योंकि टाइम थोड़ा जिहा मीटिंग दे विच असीं डिसाइड करांगे डॉक्टर साहब दी याद विच क्योंकि डॉक्टर साहब तां साडे नाल हमेशा जदों बह गए ते साडे लई पॉजिटिव तरंगां हो गईਆਂ सीगੀਆਂ ते इस करके डॉक्टर साहब तां साडे मिशन दिनां विच ने ते जो वाहिगुरू दा हुकम सताब जाना सामने है ते डॉक्टर साहब भी उसे अपनी संसार की यात्रा पूरी करते हुए बहुत वधिया जीवन जी के वो इस दुनिया तो गए हैं। तो परमात्मा की मैं अरदास करना साडी एसोसीएशन वालों ते सारे मैंबर वालों शरदा दे फरपेट करके अरदास करना कि उन्होंने आत्मा की आत्मा में शांति बख्शण ते अपने चरणों च निवास बख्शण, परिवार को बढ़ावन दा बल बख्शण। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी तक सारे अति सत्कारयोग डॉक्टर दलबीर सिंह जी देखभाल की अंतिम अरदास करते बैठी सब संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब के बारे में पाले जिले की किसी पहुंचे तो सारे डॉक्टर साहब के
नेड़े साथी हो, डॉक्टर साहब को अच्छी तरह जानते हो, पर जेडे नहीं जानते होंगे उन्होंने भी डॉक्टर साहब बारे जो दसिया गया उन्होंने असलियत जो उन्होंने जीवन की देखकर सामने आ गई। तो मैंने भी कुछ समय डॉक्टर साहब के नाम काम करने का बताने का मिला, जो कुछ यादा उन्होंने नाम जो देखियाँ वो तुहाडे नाल साझियां करना चाहता कि डॉक्टर साहब एक समर्पित शख्सियत सी। उन्होंने एनिमल साइंस के पहले प्रोफेसर जॉब की थी, उन्होंने एक्सटेंशन एजुकेशन डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगी प्रसार शिक्षा जिन्हें उन्होंने हबड़ा एरिया अडॉप्ट किया। हबड़ा को लेकर सिरपा गेट तक वो इलाके की जो डेवलपमेंट सी डॉक्टर साहब ने को गया चुकिया कि डेवलपमेंट भी कहना थी जिन्हें डॉक्टर साहब दस रहे सी जेडे जो बहुत लोड शिक्षण वाले जेडे दिहाड़ीदार मजदूर जिन्होंने के दफ्तर कोई फर्क नहीं सी देता, जिन्होंने कोई कुछ तकलीफ नहीं सी, जेडे किसी दफ्तर के अंदर जाने भी अभी पीछे जाते भी अंदर के भी काटना क्यों पीछे क्या काम है। डॉक्टर साहब ने उन्होंने लेके तक बया पोल्ट्री लाते दे दिया। छोटा मजदूर भी जरा मजदूरी करता दिहाड़ीदार है, उसके बच्चे ने पूरी बीवी है, वो नाम भी नाम दो 350 नंबर की पाए या एक दो मजा रखे कि पूरा बढ़िया जरा निर्वाह है गुजारा हो सके। डॉक्टर साहब ने ये प्रोजेक्ट तकरीबन 80-80 शुरू किया। जब शुरू किया तो उन्होंने लोगों द्वारा प्ले कार्ड की स्कीम चलती थी पंजाब सरकार की, उन्होंने 10,000 का लोन दिए थे, वन कार्ड सब्सिडी होती। ये सारा काम डॉक्टर साहब ने बैंक का नाम रब्ता करना है बैंक के नाम वी लोन पे डॉक्टर साहब ने आप रब्ता किया। उन्होंने घर बैठे उनको लोन मंजूर करा के उन्होंने काम शुरू छोटे-छोटे पोल्ट्री फार्म शुरू करवा देने समाज होता है। मैं जरा प्लेस नहीं जाना थोड़ा देख लेने का देना सरकार करांगा। फिर ये शुरू करके फिर देखकर ये होगी थी 2-400 रुपये वाला कि मैं कितने आटा भेजेगा, केड़े लेके जाएगा, वो फील्ड तो जाएगा किलो 7 रुपये का। कहते भी डॉक्टर साहब ने पट्टा हुआ पिंड है हमारा 2 किलोमीटर आगे उस रोड के उत्ते वापर कोटी चढ़ा करवाई। 70-80 फार्मर इकट्ठे हो गए, उन्होंने सोसाइटी बनाई, उत्ते बिल्डिंग बनाई गई, स्टाफ रखा गया और उन्होंने सारी मंडियां की पहला की कलेक्शन की वो सेंटर पॉइंट पे इकट्ठी करनी शुरू कर दी। जेडे 2-400 मुर्गी बड़े सी वो 35-40-50 मुर्गी की मांग पड़ गई क्योंकि सारे उन्होंने यूनिटी हो गई। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अकाल दिमाग की जड़ी है वो फिर उतों ही लड़ा होने लग गया, उसे ही फील्ड होने लग गई, उसे प्रोजेक्ट लाया गया, मिक्सर लाया गया, ग्राइंडर लाया गया, और कुछ लोडिंग के जल्दी स्टाफ किया गया। ते उन्होंने ताकत फील्ड पे जाने के लिए रेट ज्यादा टेम्पो का नाले का लोगों को रोजगार मिला, जेडे बेड़ा चलाਉਂਦਾ ਸੀ, बैल मिट्टी चलाਉਂਦਾ ਸੀ, टेम्पो चलाਉਂਦਾ ਸੀ, उन्होंने तरह की फील्ड पे जाके होंगे ते नाले वाले हांडे इकट्ठे करके उसे ले आਉਂਦੇ। इस तरह डॉक्टर साहब ने इस एरिया के विच अपनी इन्नी पहचान बनाई कि मैं यही गल कहते हैं संकोच नहीं कि डॉक्टर साहब को समय क्लीन शेव होंगे ते नीले रंग की टोपी कहते सी सिर के उत्ते ते लोगों ने डॉक्टर साहब के बारे की तदवस दिता सी कि नीली छाप वाला करा गया। इन्हां लोगों ने नाम सरकार सी डेवलपमेंट इन्नी कराई। एक बार की घटना मैंने याद है कि जो मैं अपनी जिंदगी में होर के लिए कोई मिसाल नहीं देखी। डॉक्टर साहब ने फिर वीकर सेशन या जनरल कास्ता का वीकर सेशन थोड़ी जमीन किला दो मिले गवर्नमेंट को उन्होंने कोई सहूलत नहीं सी। उन्होंने बारे डॉक्टर साहब ने सोचा कि इन्होंने 5-5 पशुओं की जी है वो डेयरी की शुरू करवाई जाए। ये डॉक्टर साहब ने एक पंजाब की कारपोरेशन है वुमेन चैरिटेबल वेलफेयर कारपोरेशन को कहते हैं। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल संपर्क किया, बिल्कुल संपर्क करके जेडे राशि से लीडर लोग से उन्होंने गल करके उन्होंने 9,000 का लोन मंजूर करवाया कि वो जमीन प्लाट करने की जरूरत सी और बेटी के नाम लोन होने से जमीन प्लाट होने से और कोई बैंक का पता भी मेरे लैंड को मेरा काम नहीं करता पर एक मिसाल बैंक के डॉक्टर साहब ने तहसीलदार आप को रिपेंड सदया
ते सारे लोगों को उत्थे लेके बुलाया कि तुसीं अपने इत्थे रजिस्ट्रियां जेहड़ियां अपलाइड होईयां ने वो रजिस्ट्रियां ठीक करके इत्थे करके जाऊगा, कोई पैसा नहीं है। एक मिसाल उत्थे महकमे नूं बुलाया, जिहड़ा भी कोई काम होंदा सी, डॉक्टर साहब आप चाहे बिजली बोर्ड का काम होंदा सी, चाहे बैंक का काम होंदा सी, चाहे डेयरी महकमे का काम होंदा सी, चाहे पोल्ट्री का होंदा सी, चाहे यूनिवर्सिटी नाल संबंध सी, डॉक्टर साहब आप करते उत्थे ही फिर डॉक्टर बुलाते। पोल्ट्री के डेयरी की जी ट्रेनिंग सी उस जगह पर ही दी जाती, किसी यूनिवर्सिटी आने की लोड़ नहीं सी पैंदी। होर भी सहायक करते फिशी ने भी शुरू करवाए, उन्होंने बी की कुंती की ट्रेनिंग कराई, शुरू भी होया काम। इस करके डॉक्टर साहब ने मैं आप देखिया मैं भी काम करना नाम मौका मिला 40 साल के मेरे इस कानून का डॉक्टर साहब ने वास्ता पाई, बड़ी प्रेरणा मिली है, बड़ा कुछ सीखा मिली है। अभी रात तक 9-10 बजे तक डॉक्टर ने आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब लोगों ने पोल्ट्री फार्म में चक्कर लाते, किसी ने आए करो कहीं करो, इन्होंने पोल्ट्री पत्ते लाओ, इन्होंने लेटर का प्रबंध करो। आप डॉक्टर साहब ने जाके लोगों ने पानी चेक करने लोग किसी न किसी तरह आपको बड़ा सोना समझ लिया, पर फिर पता नहीं कि नजर लगी कि जरा सरकारी इदारा पॉकेट है पूरी दखलंदाजी शुरू हो गई। जिन्होंने सरकारी इदारे की दखलंदाजी नहीं हुई तो प्रोजेक्ट बड़ा वधिया चलिया, डॉक्टर साहब की कमाई रेट जो उत्थे सरकारी इदारा आ गया कोर्ट महकमा ते चलो भी सारे सिस्टम निकल गया, सारी खेल खत्म हो गई। वो डॉक्टर साहब ने सुविधा मिली, उन्होंने दस्ते दी होगी जिन्होंने इन्ना वो सिस्टम चलाया सी जो आज हमारा नाम सी सारे वो वर्ल्ड के जानते हैं कि इंडस्ट्री करके हमारा मशहूर है। इसलिए डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। 80 लगभग 80 के करीब डॉक्टर साहब ने एक डीसी साहब होंगे सी लखनपाल जी राबता किया, गवर्नर सतारे वाला जी के उदों गवानीलाल सिंह हेमड़ा के सरपंच अलवेश सिंह जी, इन सारे मसला करके हेमड़ा की कुछ जमीन सी जो कि कुछ परिवार का कर्जा सी वो डॉक्टर साहब ने सलाह करके वो यूनिवर्सिटी को दे दी। उत्थे 5-7 घराणियां को जमीन दे के काम शुरू होया, जो कि आज साढ़े सामने 2.5 यूनिवर्सिटी लगी हुई है। ये डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर साहब ने बहुत ईमानदारी के नाल समर्पित होकर काम किया। इतों तक कई बार उन्होंने कलीग भी डॉक्टर साहब तो खफा हो जाते, भावे मुँह से कोई नहीं कहता, उन्होंने कहना डॉक्टर साहब किहड़े काम च कर सकते। इस करके डॉक्टर साहब के जीवन को बहुत सीखने वाली गल्लां ने कि उन्होंने ईमानदारी के नाल जीवन जिया ते असीं भी डॉक्टर साहब तो बहुत सीख रही। ईमानदारी के पक्षों भी मेरा बेटा सेंट्रल जीएसटी काम करता है, वो डॉक्टर साहब की शिक्षा करके वो बेटे को नहीं शिक्षा मिली कि एक कोई तो आसे पासे नहीं करता जबकि आप जानते हो कि टैक्स नगर बिजली की कुछ होता है। इस करके मैं डॉक्टर साहब का दे नहीं दे सकता। जो कि मैनू सैनी डिप्टी पूछना कि ये तुसी बोल सकते हो ते बोलो, मैं कभी बोलने का जानता नहीं जानता था, मैं अपने दिल के बल जेडे ने वो जरूर संगत साझे करना चाहता, क्योंकि मैं उन्होंने अपने बाप का उन्होंने नाम दिल बताए ने तो सानू बहुत कुछ सीखने को मिला। सो लास्ट दिन भी करते हैं मैनू कबीर साहब का कुछ लोग याद होता है। कबीरा जब हम आए जग में जग हमसे हम रोए ऐसी करनी कर चले, जग हम हमसे जग रोए। सो हम जग रोन वाली गल है। डॉक्टर साहब को याद करके उन्होंने यादां उन्होंने कीते हुए कामां। सो अगर असं डॉक्टर साहब के डॉक्टर साहब ने कहा कि उन्होंने कीतियां हुई सिद्धांत के विचों 10% भी बना लेंगे, उन्होंने जीवन आधार बना के जो मेरे सब को सच्ची सुधार दी डॉक्टर साहब को यही बड़ी समझ ज़्यादा समझ ना था। हम ऐसा तो देना अरदास बेनती ऐसा तो आप अपने करना में लक्ष्य विश्व प्रवाह पाना मिलता बल बख्शन कोई को नहीं खेमा वो वाहिगुरू जी का खालसा